कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नितिनाथ प्रभुपाद से साहित्य में प्रकाश जय प्रचार प्रधान साहित्य ते नमः। श्री गुरुदेव की जय। श्री गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तथालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री गुरुदेव। Today is 79th Vyas Puja day of our dearest Guru Maharaj, and all over the world, maybe in more than 900 centers throughout the world, his glories are being sung by the devotees who have been associated with him, by his disciples, and so many other speakers in his own world and outside. So there are several things that Guru Maharaj is doing throughout the world. There are plenty of things that Maharaj is expert on, but one thing that is keeping Maharaj on top of the disciples of his spiritual master is that he is following exactly what Srila Prabhupada has told him. Because love for Krishna grows through the obedience of the merciful spiritual master. So if you are obedient to your spiritual master, you definitely your love for Krishna will increase multifold. And we have seen this in the example of Srila Prabhupada, because he followed the instructions of his Guru Maharaj and established the International Society for Krishna Consciousness, and you see now we have more than 900 centers and temples throughout the world, and millions of devotees who are spreading the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu throughout the world. The other thing that Maharaj is very concerned about is the well-being of all the devotees of ISKCON, irrespective of who their spiritual masters are, because Maharaj feels that the entire ISKCON is his family, and accordingly he is very compassionate to all the devotees throughout the world. Maharaj is also very critical about the cooperation between the devotees, and is always whenever we speak, whenever he gives his instructions, he always say one thing: wherever you are, follow the instructions of the management of the temple, because they are my representative, and cooperate with the devotees. We are very grateful to Guru Maharaj that we have been assigned some responsibilities and duties in this temple. This temple is very dear to Guru Maharaj, and most likely we are going to inaugurate this temple on 22nd of February 2024 on the auspicious day of Nityanand Triyodasi. So, His Grace Surdas Prabhuji also in the morning, it is glorification of Guru Maharaj, has confirmed that the temple will be opened on 22nd of February 2024. So now this is the temple will be opened. This is a great opportunity for us, all of us. This is one of the lifetime opportunity that one can have to be part of it, opening of temple. So along with us who do something somewhere, do it sometimes correctly, sometimes incorrectly, sometimes but everybody has to give their heart and soul for the opening of this temple, and we exactly have 6 months from today. And if we all come together, help each other, cooperate with each other, then we can make the temple opening ceremony very great. So we are thankful to Guru Maharaj for giving us this opportunity to serve here under his guidance and the guidance of His Grace Surdas Prabhuji. Thank you very much, Guru Maharaj, for giving us this opportunity, and we request you that please keep blessing us so that we
are able to serve you and your instructions. Hare Krishna. Shri Gurudev ki jai. हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती गोपाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश्य वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। श्रील गुरुदेव की जय। श्रील गुरुदेव से मैं 2007 में सबसे पहली बार मिली थी एक डिवोटी के घर पे। उन दिनों मैं स्कूल में टीचिंग किया करती थी और मेरा टीचिंग जॉब 1991 में मैंने स्टार्ट किया था, जो 2011 तक चला। जब मेरी दीक्षा हुई 2011 में, तो मैं महाराज के प्रति इतना ज़्यादा डिवोटेड हो गई, समर्पित हो गई कि फिर और आगे इस मटेरियल वर्ल्ड में काम करने की इच्छा नहीं रही। फिर केवल यही इच्छा रही कि महाराज के लिए ही सर्व किया जाए। और महाराज ने मुझे, जब पता चला कि मैं टीचिंग जॉब में हूँ पिछले गत 20 सालों से, तो महाराज ने मुझे केवल एक ही इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम प्रीचिंग करो और बस प्रीचिंग करो। फिर 2011 में हमें अवसर मिला, हम गुड़गांव में कुछ 1.5-2 साल के लिए वहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो वहाँ पर भी महाराज ने यही आदेश दिया कि आपको प्रीचिंग ही करना है, दोबारा से जॉब ज्वाइन नहीं करना है। फिर 2012 के एंड में और लगभग 13 में फिर जब हमारा भक्ति शास्त्री फर्स्ट टाइम कंप्लीट हो गया, फिर मैंने गुरु महाराज से पूछा। महाराज ने तब भी वही आदेश दिया कि आपको प्रीचिंग ही करना है। उसके बाद हम चलते चलते यहाँ पर भक्ति वेदांता कॉलेज है, उसमें 6 साल तक मैंने सर्व किया गुरु महाराज के अंडर में। हिज ग्रेस वैष्णवंगरी प्रभु के सानिध्य में रहकर सर्विस किया, जिसमें मैंने भक्ति सदाचार और बाकी दूसरे कोर्सेज पढ़ाए थे। फिर उस दौरान ही प्रभु जी ने मुझे मोटिवेट किया कि आप पीएचडी क्यों नहीं करते। तो मेरी पीएचडी करने की इच्छा 1995 में थी, जब मैंने एमफिल किया था जूलॉजी में, लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाई थी। तो वो इच्छा प्रभु जी के मोटिवेशन से, एजुकेशन में मैंने एमएड भी किया है, तो एजुकेशन सब्जेक्ट के द्वारा मैंने उसको पूरा किया। जो मुख्य था भगवत गीता में, भगवत गीता का टॉपिक लेके। और जब मेरी पीएचडी 2020 में कंप्लीट हो गई, तब मैंने महाराज से पूछा, महाराज अब तो मेरी पीएचडी भी हो गई है, अब बताइए। मुझे लगा शायद महाराज कुछ नया आदेश देने वाले हैं। महाराज ने बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम प्रीचिंग करो, जैसे मेरी बाकी लेडी डिसाइपल्स हैं। महाराज ने कोट किया, जैसे दिल्ली में राधे का कृपा माता जी हैं, तुमको वैसा ही बनना है, उतना प्रीचिंग करना है। तो उस लेवल तक तुम अपने आप को पॉलिश करो और अच्छा बढ़ाओ। तो ये गुरु महाराज की ही कृपा है, उनकी ही कृपा दृष्टि है कि वो पहचान लेते हैं कि यहाँ जो बैठे हैं उनमें से किसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी है। तो महाराज ने वो पहचाना, और मैं शायद अपनी एलिजिबिलिटी भूल चुकी थी, क्योंकि भक्ति में आ गई थी, तो ये लगा सब कुछ छोड़ दो। हाँ, तो भूल चुकी थी। वो महाराज ने मुझे बार बार याद दिलाया, और महाराज की कृपा से मैं अभी ऑनलाइन भक्ति शास्त्री पढ़ाती हूँ, जिसमें 30 स्टूडेंट्स को मैं भक्ति शास्त्री करा रही हूँ। और महाराज जी की कृपा से एक स्टूडेंट ने भक्ति शास्त्री मेरे सुपरविजन में कंप्लीट कर लिया है, एंड शी हैज़ अचीव्ड 92% इन भक्ति शास्त्री। और साइड बाय साइड मैं ऑनलाइन प्रीचिंग, जैसे रूप मंजरी इंस्टीट्यूट जुहू में है, वहाँ पर भक्ति सदाचार पढ़ाती हूँ। एक बैच कंप्लीट हो चुका है और दूसरा बैच लाइन अप है। इसके साथ साथ ही और बहुत सारे प्रीचिंग मेरे चलते रहते हैं, जैसे इंटरनेशनल ग्रुप है दोहा कतर में, आप सब जानते होंगे। तो वहाँ पर भी मेरा वंस इन ए वीक लेक्चर रहता है। दे इनवाइट मी एज अ गेस्ट लेक्चर टू गिव समटाइम्स ऑन भगवत गीता और ऑन श्रीमद् भागवतम। And by mercy of Guru Maharaj, all of my lectures are available on YouTube. Link Janaki Devi ISKCON Khargar. So if any one of you want to see, you can go to the YouTube link Janaki Devi ISKCON Khargar. You can see how I am teaching, and if you would like it, please join with me. And
मुझे सपोर्ट करिए तो अच्छा है, क्योंकि महाराज का बार बार यही आदेश है कि आपको प्रीचिंग करना है, प्रीचिंग करना है, प्रीचिंग करना है। महाराज ने मुझे इसके अलावा और कोई सेवा नहीं दिया। फिर भी महाराज बहुत ही विनम्र हैं, फिर भी वो कहते हैं साथ साथ में कुछ तो मंदिर में करना ही चाहिए ना। तो उसके लिए मैंने महाराज से पूछा, तो महाराज को मालूम है हम बहुत साल से 2008 से जब यहाँ जुड़े थे तब से कीर्तन किया करते हैं, तो महाराज को पता है। तो महाराज ने बोला ठीक है, आप कीर्तन किया सेवा किया करो। तो एवरी ट्यूसडे एंड ऑन एवरी एकादशी आई डू फिजिकल सेवा राधा मदन मोहन जी के लिए, गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए मैं हरि नाम का कीर्तन करती हूँ। और बाकी साथ ही जैसे कि महाराज का इंस्ट्रक्शन था, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं महाराज की इच्छाएं भी बढ़ती जा रही हैं। तो पिछली बार जब हम महाराज से मिले तो महाराज ने कहा व्हाई डोंट यू स्टार्ट टू राइट द बुक्स लिखो, जैसे राधिका कृपा माता जी बुक्स लिखती हैं, आप भी लिखो, आप लिख सकते हो। तो महाराज ने मुझे पर्टिकुलर टॉपिक दिया, उसकी शुरुआत मैं बहुत ही जल्दी करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अभी मेरे 3 रिसर्च आर्टिकल्स 3 बुक में पब्लिश हो चुके हैं, जो एक वुमेन्स पावर देयर चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन के ऊपर है, एक एनवायरमेंटल साइंस एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच फॉर द बेटर फ्यूचर इसके ऊपर है, और इन एजुकेशन। तो ये 3 बुक में मेरे 3 आर्टिकल ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। साथ ही गुरु महाराज की असीम कृपा से मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एक सेमिनार लिया था अभी, जिसमें 11 कंट्रीज़ के डिफरेंट हाई अथॉरिटीज़ वाले मेंबर्स हैं जो उस सोसाइटी को चलाते हैं। दे कॉल इट RCEEE, ओके। एंड इन दैट कॉन्फ्रेंस, in that assembly, I have given one workshop, or you can say lecture. It was on teaching Bhagavad Gita to the Society for Sustainable Development. तो वो उन लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि बाहर के फॉरेनर लोगों को भगवद गीता से यदि आप जोड़ के कुछ बताएं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो जब ये हुआ मैंने महाराज को शेयर किया, महाराज बहुत खुश हो गए, बोले अब तो आपको 100% बुक लिखना ही है। तो मैं आप सभी से आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं गुरु महाराज की कृपा मुझ पर असीम बनी रहे और मैं गुरु महाराज की आज्ञाओं का पालन करती रहूँ और आप सभी की सेवा करती रहूँ। जय श्रीला गुरुदेव। हरे कृष्ण।